Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss about the detailed anatomy of the heart. Then, first of all, the heart is a major organ of the cardiovascular system. The word cardiovascular is derived from two words. First is cardio and vascular. The word cardio is related to heart and vascular means blood vessels. Then, heart is a hollow muscular organ that pumps blood throughout the body. होलो मीन्स कि जो हार्ट है वो अंदर से खाली ऑर्गन है और वो मसल से बना होता है. द साइज ऑफ हार्ट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट वेज अबाउट 225 ग्राम इन फीमेल्स एंड 310 ग्राम इन मेल्स. It is located in the thoracic cavity in the mediastinum. The mediastinum is the area between the two lungs. This area is known as mediastinum. The heart is located in the mediastinum towards the left side of the body. Then there are mainly three layers of heart: outer layer, middle layer and inner layer. The outer layer is known as pericardium, middle layer myocardium and inner layer is endocardium. That you can see here, the outer layer is pericardium. It forms the outer protective layer for the heart. And then middle layer is myocardium, which forms from the muscle fibers, and innermost layer is endocardium, that is thin inner layer. Then at pericardium, we will discuss about the three layers in detail. Pericardium is the outermost covering of the heart. जो पेरिकार्डियम है वो फर्दर दो में डिवाइड होती है: पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम. दिस वन इज द पैराइटल पेरिकार्डियम. दिस yellow thin line is parietal pericardium and this one is the visceral pericardium. विसरल पेरिकार्डियम जो मायोकार्डियम को कवर कर रही है, यहाँ से जो मायोकार्डियम को लाइन करती है वो है विसरल पेरिकार्डियम. एंड आउटर इज पैराइटल पेरिकार्डियम. जो हमारी पैराइटल पेरिकार्डियम है, ये वाली येलो थिन लाइन, ये फर्दर टू में डिवाइड होती है: फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर सीरस. जो आउटर फाइब्रस लेयर है वो बनी होती है थिक फाइब्रस टिश्यूज से, जो हार्ट को प्रिवेंट करती है ओवर स्ट्रेचिंग से. और जो इनर सीरस लेयर है वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जहाँ पे जो फ्लूइड है वो सिक्रीट होता है. देन दिस ग्रेइश पार्ट इज नोन एज पैराइटल कैविटी. पैराइटल कैविटी is the space between the two layers, between the visceral pericardium and parietal pericardium. This is the space known as parietal cavity. It contains a thin film of fluid. The total volume of pericardial fluid is 25 to 35 ml. Then myocardium. The word suggests that it is formed from muscles. Middle layer of heart made up of cardiac muscle fibers or cardiac myocytes. This is the heart's middle layer. This one is the middle layer known as myocardium and it is formed from the myocytes. Myocytes are the basically unbranched structures. It forms the bulk of the heart. Bulk of heart means क्यों? क्योंकि जो मेजर पोर्शन है जो हार्ट की वॉल का वो मायोकार्डियम ने कवर करा है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट. इट इज़ इनवॉलंटरी इन नेचर. इट हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ कार्डिक मसल फाइबर्स. इसमें जो हमारे जो थ्री टाइप्स के कार्डिक मसल फाइबर्स होंगे: फर्स्ट वन विच फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, सेकेंड इज़ विच फॉर्म पेस मेकर एंड थर्ड वन इज़ विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम. पेसमेकर एक जगह है जहाँ से हमारी इम्पल्सेस जनरेट होती हैं ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ हार्ट. मीन्स ऐसे नोड हमारा पेसमेकर है. देन एंडोकार्डियम. इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट विच लाइन्स द चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट. ये वाली जो लेयर है जिसने इनर साइड से हमारे जो चैम्बर्स हैं, हार्ट के चैम्बर्स हैं, उनको कवर करा है, ये लेयर है एंडोकार्डियम. And it ensures smooth flow of blood through the heart. It forms of single layer of endothelial cells, continues with endothelium lining of blood vessels. This one is the endocardium layer, which is the innermost layer of the heart. Then chambers.
There are mainly 4 chambers of heart: right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. This is the left side of the body and this is the right side of the body. जो लेफ्ट साइड पे हमारे चैम्बर्स हैं वो हैं, ऊपर वाला जो 4 चैम्बर्स हैं बेसिकली राइट एट्रियम, ऊपर वाले हैं एट्रियाज, नीचे वाले वेंट्रिकल्स। तो ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड पे होंगे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। देन वॉल्स ऑफ हार्ट। Heart has 4 walls that permits the flow of blood only in one direction and prevent backflow। कि जो अगर ब्लड है हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो कर रहा है तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्स होते हैं। तो जो हार्ट में वॉल्स हैं वो मेनली 4 टाइप्स के होंगे। 2 होते हैं हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स बिटवीन द एट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स, एंड सेकेंड इज पल्मोनरी वोल्व एंड आयोटिक वोल्व। तो जो फर्स्ट वोल्व है हमारा 2 एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व्स, एक हमारा यहाँ पे राइट साइड होगा, दूसरा लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्ट एवी वोल्व है हमारा उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। ट्राइकस्पिड वोल्व हमने क्यों बोला है, क्योंकि ये 3 कस्प से बना, लाइक जैसे ढक्कन होते हैं ना इस टाइप से इसमें 3 कस्प हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व। और जो लेफ्ट साइड वोल्व है इसको हम बोलते हैं मिट्रल वोल्व। दिस वन इज द मिट्रल वोल्व, you can see here। then pulmonary valve is between the right ventricle and lungs। जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और जो लंग्स, यहाँ से लंग्स के बीच में यहाँ पे जो वोल्व होगा, ये वाला वोल्व जो पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जा रहा है ब्लड, अगर राइट वेंट्रिकल से अगर ब्लड फ्लो कर रहा है पल्मोनरी ट्रंक की तरफ, मतलब टूवर्ड्स द लंग्स, तो यहाँ पे जो वोल्व होता है इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वोल्व। फोर्थ वन इज़ द aortic valve। Aortic valve is basically between the left ventricle and aorta। This one is the aorta, this reddish part is aorta, this one। So the valve between the aorta and the left ventricle is known as aortic valve, which prevents the backflow of blood from the left ventricle to the aorta। Then flow of blood in the heart। First of all, यहाँ पे जो हमारी ये हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो हमारा वोल्व है वो है ट्राइकस्पिड वोल्व। इसमें यहाँ पे पल्मोनरी वोल्व है जो लंग्स और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, और दिस वन इज़ द aortic वोल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल और aorta के बीच में होगा, और दिस वन इज़ द मिट्रल वोल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। Then these are the pulmonary veins। There are 2 pairs of pulmonary veins, 2 is right side, 2 और जो 2 होती हैं हमारी वो लेफ्ट साइड होती हैं। जो ये पल्मोनरी वेन्स हैं, दिस वन इज़ द सुपीरियर वीना केवा एंड दिस इज़ इन्फीरियर वीना केवा। सुपीरियर वीना केवा हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहाँ पे मतलब जो हमारा विदाउट ऑक्सीजन जो ब्लड होगा, ये होल बॉडी से अपर पार्ट से जो ब्लड कैरी करती है वो होती है सुपीरियर वीना केवा, और इन्फीरियर वीना केवा हमारा लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में लेके आती है। तो जो राइट एट्रियम है वहाँ से हमारा ब्लड थ्रू द ट्राइकस्पिड वोल्व हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है थ्रू द पल्मोनरी वोल्व into the pulmonary artery। दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से हमारा जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके वहाँ पे ब्लड जो थ्रू द एल्वुलाइज वहाँ पे प्योरीफिकेशन होगी ब्लड की, एंड देन थ्रू द पल्मोनरी वेन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कम इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम से थ्रू द मिट्रल वोल्व जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में। This one is the aorta। This is arc of aorta, ascending and descending arc of aorta। Then blood vessels of heart। So the heart consists of blood vessels, like this is the right pulmonary artery, left pulmonary artery,
लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट पल्मोनरी वेन्स ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लंग से प्यूरिफिकेशन के बाद। और ये जो वेन्स हैं ये आर्टरीज़ हैं, जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि जो आर्टरी है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा, जो आर्टरी है लाइक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, जो आर्टरीज़ हैं यहाँ पे वो ब्लड कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड, एंड जो वेन्स हैं वेन्स करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ये प्लीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस होगी। एंड दिस वन इज़ द सुपीरियर वीना केवा, जो ऊपर बॉडी के जो पार्ट्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है इन द राइट एट्रियम। एंड दिस इज़ इन्फीरियर वीना केवा, जो लोअर बॉडी से लेके आती है। देन पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। डिसेंडिंग aorta, then aorta, this one is the arc of aorta. This curve shaped structure is known as arc of aorta, and ascending aorta and descending aorta. These are the blood vessels of the heart. Then blood supply of the heart. अब जैसे कि हार्ट है, वहाँ से हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं वो ब्लड लेके जाती हैं लंग्स में। तो लंग्स में जाके वहाँ पे ब्लड है जो हमारा प्योरीफाई होता है। देन उसके बाद क्या होगा, जो 5% ब्लड है वो हमारे हार्ट को चाहिए होता है अपनी ब्लड सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आयोर्टा, वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड सप्लाई है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे होती है, यहाँ पे हमारी जो आर्टरीज़ आएंगी मेनली 2 आर्टरीज़। फर्स्टली क्या होगा, जो हमारी ये पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ से हमारी जो ब्रांच निकलती है आर्टरीज़ की, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दिस पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ जहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगी, ब्रांच निकलेगी असेंडिंग अयोर्टा से, लाइक असेंडिंग अयोर्टा यहाँ से ब्रांच निकल रही है राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दिस वन इज़ द राइट कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये हमारा ब्लड सप्लाई करती है राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल एंड बॉटम पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बैक ऑफ द सेप्टम। मेनली जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये रिस्पॉन्सिबल होती है राइट साइड को ब्लड सप्लाई करने के लिए, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये आगे 2 में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ द सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड सेकेंड वन इज़ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये ब्लड सप्लाई करेगी टू द लेफ्ट एट्रियम एंड बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल के बैक में जो आर्टरी सप्लाई कर रही है वो है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये ब्लड सप्लाई करेगी फ्रंट पार्ट को, लाइक जो फ्रंट एंड बॉटम है लेफ्ट वेंट्रिकल का और फ्रंट ऑफ सेप्टम, उसको जो ब्लड सप्लाई करती है वो है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। एंटीरियर मीन्स कि जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, डिसेंडिंग मीन्स लोअर पार्ट। तो ये किसको करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के बॉटम को और फ्रंट को एंड फ्रंट ऑफ द सेप्टम। और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी राइट एट्रियम को करेगी एंड साइड ऑफ द बॉटम बैक ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। देन दिस ब्लूइश स्ट्रक्चर्स आर द कोरोनरी वेन्स, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। देन द राइट कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था इसमें कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये राइट एट्रियम में ब्लड सप्लाई करेगी, राइट वेंट्रिकल में एंड बॉटम पोर्शंस में लेफ्ट वेंट्रिकल के और सेप्टम के बैक में। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये भी फर्दर 2 में डिवाइड होती है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड मार्जिनल आर्टरी, मीन्स पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड राइट मार्जिनल आर्टरी। तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है दिस वन राइट कोरोनरी आर्टरी ये ब्लड सप्लाई करती है राइट एट्रियम को, राइट वेंट्रिकल एंड बॉटम पोर्शन ऑफ बोथ द वेंट्रिकल्स एंड बैक ऑफ द सेप्टम। देन विनस ड्रेनेज, जो जैसे कि आर्टीरियल सप्लाई तो हमने पढ़ ली कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जो हार्ट है, हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, बट विनस ड्रेनेज है वो कैसे होगा हार्ट का।
लाइक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से जाता है, तो जो वीनस ड्रेनेज है हार्ट का वो कोरोनरी साइनस की हेल्प से होता है, जो हमारा ओपन होगा राइट एट्रियम में. दिस इज़ द कोरोनरी साइनस. दिस ब्लूइश पार्ट इज़ द कोरोनरी साइनस.